नमस्कार, शी इंस्पायर्स के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो सब अचीव करें जो हम सब नहीं कर पाए हैं और वो अपने जीवन में उन सभी ऊंचाइयों को छुएं जो वो एक्चुअली करना चाहते हैं। और इसी मिशन पे काम करते हुए आज की हमारी गेस्ट हैं जिनका नाम है एजियल मार्क्वेस। एजियल बिलीव करती हैं कि हैप्पी पेरेंट्स एंड हैप्पी चिल्ड्रन क्रिएट अ हैप्पी सोसाइटी। She is a founder of GPS for Parents. She is known as the Queen of Curriculum Design and Training. She is also a recipient of Best Young Principal Award for 2020 and Global Women Leader Award for 2024. तो आज की स्पेशल गेस्ट को हम सभी वेलकम करते हैं। वेलकम एजियल, वेलकम टू द शो टुडे। Thank you so much for having me, and thank you for such a lovely introduction. Yeah. Yeah, it's my pleasure. So, Azil, आप, you work basically for the well-being of the children and, child development. So, how was your childhood? Why don't you share, the experiences of your childhood? Sure. Yeah. So my childhood was basically like a roller coaster ride, with Mm-hmm. ups and downs, but largely with lots of lows more than ups. And it was particularly because of the speech issues that I had as a child, um, namely stammering. So if you actually have seen that movie called Dar of Shah Rukh Khan, he kind of raises his hand, widens it, and says Kiran, kind of a thing, right? Yes. So that part where you stretch a particular word, that is called stammering. So Mm. that stammering or that dialogue kind of brought in a lot of fame to Shah Rukh Khan. People still remember that dialogue even till date, right? They do. But for me, it was like the other way around. Many people bullied, teased, and kind of even let me not be a part of their group circle and their thing just because of the stammering that I had, because they were not Mm-hmm. able to understand me. And here I was kind of struggling with stammering and also another speech disorder called stuttering. So stuttering is in Hindi we normally say totla, totlapan. ये लड़की तोतली है, तोतली जैसी Mm. बात करती है. So Mm. in which the pronunciation is not right. So if I had Mm. to say killen, it would have been killing, killing, killen. Mm. So I had this mixture of stammering and stuttering that went, and because of that, like not many people understood what I spoke, what I meant to say to them, and that led to a lot of teasing, a lot of bullying, and those aspects. So that was largely my own childhood, and it didn't only go till the childhood aspect. I think till adolescent, early adulthood, almost around 17, 18 years, I was still struggling, trying to overcome or rather try to become better in my speech delivery as compared to what I was as a child. And that kind of led me to, I think, the purpose of my life, to make children more um, being able to understand, like making children more comfortable in their own being, and secondly helping adults to understand what a child feels, thinks, and experience, because that's how we can create a good conducive environment for the child's growth. So yeah, this is in brief. नहीं, तो जो आप कह रही हैं, इट वुड हैव बीन एक्चुअली अ पेनफुल एक्सपीरियंस जहाँ आप दो लर्निंग स्पीकिंग डिसेबिलिटीज़ के साथ जूझ रही थी, स्टैमरिंग एंड स्टटरिंग, और बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट्स होने के बाद भी आप अनहर्ड फील कर रही थी। लोग, बच्चे आपको अपने साथ मिक्स नहीं होने देना चाह रहे थे। दे डिड नॉट वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ देयर ग्रुप, राइट? सो दैट लेड टू द फीलिंग ऑफ बीइंग डिसओन्ड, एंड दैट वुड हैव बीन डेफिनेटली पेनफुल। How did your parents help you in coping up with this situation? What is the role of a parent when a child is undergoing such painful experiences? See, at that point, the speech therapy wasn't a known aspect of it. It was still a developing area. And a particular milestone hota hai. At that milestone, if you're able to give the right kind of therapies to the child, and also ensure the emotional being of the child is well taken care of,
we are Hmm. better able to give the child that energy, the strength to overcome such difficulties in life, to overcome, surpass, and actually become better in those areas as well, if possible. मगर वो एक काइंड ऑफ डोर मेरे लिए शट था एट दैट पॉइंट. तो मेरे पेरेंट्स ने, लार्जली माय मदर, जिससे मैं ज्यादा बात करती थी, इवन एज एन एडोलसेंट ना, दैट मीन्स इवन एट द एज ऑफ 14-15 मैं ज्यादा बात बिल्कुल नहीं करती थी. मैं बिल्कुल बात नहीं करती थी. मतलब हार्डली एक या दो वर्ड्स, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो या मराठी में, और हार्डली एक दो वर्ड्स ही निकलता था मेरे से, क्योंकि Hmm. आई नेवर फेल्ट एक्सेप्टेड. आई नेवर फेल्ट दैट आई एम अ पार्ट ऑफ अ कॉन्वर्जेशन. एंड नॉर्मली all our conversations are vocal, are verbal in nature. And where I know that I will be made fun of, I will obviously shut myself at that point. So मेरा एक ऐसा पल आया था ना, इवन एट द एज ऑफ 14-15, की अगर मुझे पानी मांगना होता था कि मम्मी पानी दो मुझे, तो मैं एक्शन से करती थी. मैं वर्ड्स बिल्कुल यूज नहीं करती थी. तो एट दैट पॉइंट मम्मी ने काफी ये किया था, पेशेंट रही थी. मगर उसके बाद उन्होंने बोला, जब तक एजीएल आप वर्ड से मुझे बोलोगे नहीं कि मम्मी मुझे पानी चाहिए, तब तक मैं आपको पानी नहीं दे रही हूँ. एक्शन से Hmm. नहीं काम चलने वाला है आपसे. सो Hmm. वैसे वो स्टेप्स पेशेंटली, प्यार से, ऐसा नहीं कि येलिंग या ऐसा कुछ. एजीएल प्लीज सेट बोलने से की इन कोशिश वर्ड्स, कीजिए. Hmm. and then you'll have it for sure. Hmm. That made me then start opening up with small things like give water. And I used to Hmm. use only one words. Then I increased my vocabulary slowly and steadily. That was one thing that was very helpful. The second thing was about whatever activities we did. अगर हम जीतते तो वेल एंड गुड, वैसे भी गिफ्ट्स आ ही जाते थे, क्योंकि जीते तो कुछ ना तो कुछ मिल ही जाता साथ में. मगर अगर हम नहीं जीतते, हार जाते वो टाइम पे, तो वो टाइम पे वो एक वर्ड ऑफ प्रेज बोलते थे, गिफ्ट्स लेके आते थे, सेलिब्रेट करते थे कि आपने पार्टिसिपेट किया. Wow. और फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन वाज मच मोर देन द फीलिंग ऑफ विनिंग एंड लूजिंग. एंड टुडे आई रियलाइज दैट if I would have not participated in my younger days, maybe I would have not got that courage of moving on. Because now I know that, okay, every such participation, every such activity that when I participated in, helped me in some way or the other. And maybe because of that, I am the being that I am, being able to kind of comprehend a lot of things. एब्सोल्युटली, ये बहुत ही अच्छा काम किया आपकी मदर ने स्पेशली। एक कि आपको बोलने के लिए एनकरेज किया कि आपको चीज़ें तब तक नहीं मिलेंगी जब तक आप बोलने की कोशिश ना करें की। और जैसे आप कह रही हैं कि पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और उस छोटे से पार्टिसिपेशन को वो आपके लिए इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन बना देते थे। एंड दैट इज़ हाउ यू एनकरेज द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन थिंग्स, स्पेशली व्हेन यू नो द किड इज़ फेसिंग सम हार्ड एक्सपीरियंसेस। उस टाइम पे उसको मोटिवेट करना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए बाकी बच्चों के साथ जिनको वो परेशानी नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पार्टिसिपेशन इन पर्टिकुलर में दोनों मम्मी और डैडी ने, दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया था. हुँ, डैडी भी हमेशा कुछ भी एक्टिविटीज हो, वो हुँ, रहते थे, साथ में खड़े रहते थे, वो खुद इन्वॉल्व हो जाते थे. वो काफी क्रिएटिव, मतलब बहुत कोशिश करते थे, मम्मी से भी ज्यादा, वो ज्यादा क्रिएटिव माइंड और सब. तो ओके, वो लोग दोनों साथ में खड़े रह के वो इंश्योर करते थे कि हाँ, हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, एंगेज रहे. एंड दैट इज अनदर की पॉइंट, कि जब एक बच्चे को दोनों का प्यार मिलता है, दोनों का टाइम मिलता है, दोनों के हुँ, थॉट प्रोसेसेस मिलते हैं, तो उसमें जो सीख मिलती है वो एक अलग लेवल पे होती है. तो वो बिल्कुल, पेरेंट, बोथ मदर एंड फादर का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना ये चीजों में सबसे ज्यादा बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। है, ज्यादा इफेक्टिव है. बिल्कुल, बहुत सही कह रही हैं आप। क्योंकि जब भी कोई बच्चा पार्टिसिपेट करता है अपने इवेंट में, तो बाकी किसी की यू नो कौन मुझे देख रहा है, एप्रिशिएट करना तो बाद में आता है, पर मुझे कौन देख रहा है, हू इज़ टेकिंग दैट पेन टू बी देयर विद मी,
और उनकी एक प्रेज़ेंस, उनकी एक स्माइल कितनी बड़ी एनकरेजमेंट होती है हमारे लिए। तो जैसे एरियल बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब दोनों पेरेंट्स मिल कर के बच्चे की अपब्रिंगिंग को एक दूसरे लेवल पे ले जा सकते हैं, तो दोनों की ही पार्टिसिपेशन इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। दोनों के रोल्स बेशक डिफरेंट होते हैं, बट एक बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए दोनों पेरेंट्स का एक्टिवली बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके यस, एंड फिर ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ पे मम्मी डैडी काम नहीं करते थे। एक्चुअली हुँ, मॉम टीचर थे फुल टाइम, उनका टीचिंग था, और डैड एक एडवोकेट थे, तो उनका पूरा टाइम कोर्ट में रहता था, क्लाइंट से मिलना होता था। फिर भी वो हमारे लिए ये टाइम जहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम डेडिकेट करते थे। ग्रेट। तो ये दूसरी लर्निंग है कि ये नहीं है कि आपको घर में ही हमेशा रहना है अपने बच्चे के साथ प्रेज़ेंट, पर जो भी टाइम आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर सकते हैं, उसको एक क्वालिटी टाइम बनाएँ। बच्चों की जो भी चीज़ें हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ करें और जहाँ रहना उनके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एंश्योर करें कि दोनों पेरेंट्स उस टाइम पे वे बच्चे के साथ हैं। तो जैसे इज़िल कह रही हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, उसके एनकरेजमेंट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो एज़िल जैसे आपने अपना करियर जो है एजुकेशन के साथ, करिकुलम डेवलपमेंट के साथ शुरू किया, बट देन हाउ वाज़ दिस जीपीएस फॉर पेरेंट्स बोर्न? ओके, सो काफी इंटरेस्टिंग टाइम पे जीपीएस फॉर पेरेंट्स का वेंचर स्टार्ट हुआ था। उसके पहले आई ऑलमोस्ट हैड 10 years of experience in the field of education itself, mainly in curriculum development and trainings, mainly teacher trainings की ओर। हुँ, कोविड पीरियड के टाइम अराउंड 2020 के आसपास पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों पूरे टाइम एक दूसरे के साथ रह रहे थे, तभी वो अनकंफर्टेबल फील फ्रॉम द पेरेंट्स साइड आ रहा था। ऑब्वियसली बच्चों को भी अनकंफर्टेबल था कि पूरा दिन पेरेंट्स के साथ रहना है, बट जब पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था मुझे क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हाउ शुड आई एंगेज माई चाइल्ड, क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, किस चीज पे फोकस करना चाहिए, कोविड के बारे में मैं कैसे समझाऊं बच्चों को। कुछ चीज अनप्रेडिक्टेबल थे, दैट्स ऑब्वियस। कोविड के बारे में हुँ, हमें किसी को ज्यादा पता नहीं था, बट समथिंग लाइक क्या एक्टिविटीज करने थे, वो अगर हमें पता नहीं कि हमारे बच्चे को क्या अच्छा लगता है, कि हमारे हुँ, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं स्कूल में, हमारे बच्चे को क्या इंटरेस्ट दे रहा है, और उससे अगर हम एंगेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सबसे हुँ, बड़ा गैप है एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में। बिल्कुल। और उसकी वजह से बच्चे पेरेंट्स के साथ ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको हुँ, लगता नहीं है कि पेरेंट्स उनको समझ पाते हैं। और अगर ऐसा हाल है, समझ लो कोविड और कंटिन्यू हो रहा है, स्कूल्स बंद हो जा रहे हैं, तो क्या स्टेट होगा एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का। एंड एट दैट पॉइंट मुझे जीपीएस फॉर पेरेंट्स का एक ये लगा कि नहीं, मैंने अब तक हमेशा एक टीचर के एंगल से सोचा है, बच्चों के एज अ स्टूडेंट एज एन एंगल से सोचा है, मगर एज अ फैमिली एंगल से कभी मैंने इतना काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट नहीं किया था। क्योंकि जब हम लोग स्कूल में रहते हैं ना, टीचर्स को ट्रेनिंग मिलता है, टीचर्स को कैसा बेटर ट्रेनिंग टीचिंग करना है, कैसे अपने स्टूडेंट्स को समझना है, उतना काफी इंटेंसिव ट्रेनिंग्स होते हैं। तो तभी मुझे ये भी लगा था कि हम टीचिंग टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, मगर काफी गैप्स और लूपहोल्स है उसमें भी। हुँ, तो एट दैट पॉइंट फिर जीपीएस फॉर पेरेंट्स चालू किया, जहाँ पे हम पेरेंट्स, एक बच्चे के लाइफ में दो सेट ऑफ पेरेंट्स है। एक है उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो उनके मम्मी डैडी है, दूसरे पेरेंट्स है जहाँ पे वो लगभग 8-9 आवर्स, 5 to 8 hours एज पर द एज लगभग स्पेंड करते हैं, वो एक स्कूल है। और वहाँ जो नॉर्मली बोलते हैं टीचर्स आर लाइक द पेरेंट्स, तो वो, तो दोनों को काइंड ऑफ एम्पावर करने की उनके पास एक राइट नॉलेज हो, स्किल सेट हो, एंड राइट एटीट्यूड हो टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, उस फाउंडेशन से जीपीएस फॉर पेरेंट्स हमने चालू किए। वाओ! दैट इज़ रियली प्रोफाउंड। मतलब एक्चुअली बच्चों का पेन समझ के कि अगर मुझे मेरे ही पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, अगर मैं अपने ही घर में मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, या मैं किस तरीके से एंगेज रह सकता हूँ, किस तरीके से मैं कुछ नया सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैं किसी और से क्या एक्सपेक्ट करूँगा?
और उस गैप को कवर करने के लिए जो है एज़िल ने जीपीएस फॉर पेरेंट्स की शुरुआत की और आज इसको ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं, इट्स रनिंग सक्सेसफुली। तो एज़िल हर पेरेंट चाहता है कि वो अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दे, मतलब कोशिश यही रहती है। पर फिर भी वो क्या कॉमन मिस्टेक्स एज़ अ पेरेंट हम कमिट करते हैं जिससे रादर देन डूइंग गुड फॉर द किड दे आर मोर हार्मफुल? अगर आप डॉक्टर हो तो ऑब्वियसली आपका इंट्यूशन एज पर योर पेशेंट होगा, मगर आपका एक प्रोफेशनल नॉलेज भी होगा, उसके साथ एक एक्सपीरियंस होगा। इन द सेम हुँ, वे पेरेंटिंग भी है। ऑब्वियसली जब हम टीचिंग में भी जाएंगे, क्लासरूम में भी जाएंगे, टीचर्स का एक प्रोफेशनल नॉलेज होगा जहाँ पे उन्होंने इतना साल टीचिंग के बारे में सीखा है, बच्चों के बारे में सीखा है। मगर जब हुँ, वो क्लासरूम में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंट्यूशन होता है कि अच्छा ये बच्चे को क्या होगा, तो ये हुँ, ब्लेंड होना, एक बैलेंस होना जरूरी है। मगर हुँ, पेरेंटिंग में जब हम सोचते हैं कि वो एक कॉमन नोशन है कि आप बन जाओ पेरेंट, आप समझ जाओगे, आप ऑन द वे सीख जाओगे, वो चीज हम ज्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू बीइंग प्रिपेयर्ड बिफोर गेटिंग बिकमिंग अ पेरेंट। एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि बच्चे का लाइफ, स्पेशली राइट फ्रॉम द वूम, जब से पेट में है टिल द चाइल्ड इज अराउंड 8 to 10 years ओल्ड, काफी क्रुशियल है, काफी इंपॉर्टेंट पीरियड है। और वो टाइम में हम ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते कि वही टाइम में हम सीखेंगे भी, बच्चों पर करेंगे भी, उसका क्या होगा वो देखेंगे भी। वो नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट वो पीरियड में काफी ज्यादा लेवल फास्टर पेस पे होता है। तो हुँ, अगर हम वो टाइम में सीखेंगे कि पेरेंट को क्या करना है, कैसे करना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या क्या मेरे पेरेंट्स ने जो सिखा किया मेरे साथ वो सही है, क्या मैं इंस्टाग्राम में जो रील्स देख रही हूँ इन्फ्लुएंसर्स का वो सही है, अ, या फिर कोई एक प्रोफेशनल है वो सही है। इनिशियल 8 years ऑफ लाइफ, जब से पैदा बच्चा पेट में है टिल अराउंड 8 years सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसका नॉलेज होना पेरेंट्स को काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्क्रीट, राइट, रिसर्च बेस्ड, वेल एक्सपीरियंस लोगों, प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्ट करके उनका लर्निंग्स लर्न करके फिर कंटिन्यू करना, वो इम्पोर्टेंट है। अभी वो एक ट्रेंड चल रहा है कि बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, एक दिन बच्चा पैदा हुआ है तभी एक केक कट करेंगे, फिर एक दिन हो जाता है 1 day कंप्लीशन में एक केक कट करेंगे, 15 days कंप्लीशन में अनदर केक कंप्लीट काटेंगे, फिर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में उसका माइलस्टोन। माइलस्टोन सेलिब्रेट करना अच्छा है, इट्स द मोस्ट अमेजिंग मोमेंट। मगर जब वो केक का क्रीम आप लेते हो बच्चे के मुंह में डालते हो, वो आप एक पॉइजन खिला रहे हो बच्चे के लिए। आपके वो सेलिब्रेशन मोड में आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि आप जो जिस बात से खुश हो वो चीज बच्चे के लिए एक पॉइजन हो रहा है। अगर आप देखोगे नॉर्मली 6 महीने तक बच्चा जब पैदा होता है 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, राइट। और कोई भी पानी भी अगर हम नहीं देते हैं माँ के दूध के अलावा, फिर सोचते हैं कि मेरे पेट बच्चे का एलर्जीज क्यों हो रहा है, मेरे बच्चे हुँ, में एडीएचडी क्यों आ रहा है, बच्चे हाइपर एक्टिव क्यों हो रहा है, बच्चे का दांत का क्यों इश्यूज हो रहे हैं, बच्चा क्यों लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर रहा है। क्योंकि हम जब ये सब एक्शंस कर रहे हैं उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बच्चे पे गिरता है। हुँ, इसीलिए हम काफी रिस्पॉन्सिबल है बच्चे के इनिशियल पीरियड में, इन पर्टिकुलर टिल 8 years की हम एग्जैक्टली बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, हम क्या अलाउ भी कर रहे हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं, हम अलाउ अपनी फैमिली का क्या कर रहे हैं। कि हुँ, अच्छा फैमिली वो लोग दे रहे हैं वो भी नहीं अलाउ कर सकते हैं, right? तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज है कि यूट्यूब अभी चालू हो गया, यूट्यूब काइंड ऑफ लर्निंग मोड हो गया है, हाँ, कि अच्छा आपको सब कुछ मिल जाता है यूट्यूब में। सही बात है, सब कुछ मिल जाता है, मगर जब आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल फोनिक्स सिखाते हैं, यूट्यूब में हजारों लाखों फोनिक्स वीडियोस है। वो फोनिक्स वीडियो कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको पता है क्या? कि आप जस्ट यूट्यूब चालू करके फोनिक्स की
ए को ए बोलते हैं, बी को ब, सिर्फ सुनाते रहते हैं। और जब हम हम्म। सुनाते हैं बच्चे वो ग्रास्प करते हैं और उनके हम्म। ब्रेन में वो स्टिक हो जाते हैं। तो अगर सही है वो भी जाएगा ब्रेन के अंदर, जो गलत है वो भी जाएगा। अभी जो सही है बाई चांस सोच चला गया वो ठीक है, बच्चा का ग्रोथ काफी अच्छा हो जाएगा। मगर वो गलत वीडियोस दिखा रहे हो तो सोचो बच्चे के माइंड में कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। और फिर बिल्कुल। हम बोलते हैं कि बच्चा का लैंग्वेज अच्छा नहीं है, बच्चे को पढ़ने नहीं आता है, रीड करने को नहीं आता है, बोलने नहीं आता है। जब एक आप भी एक प्रॉपर फॉर्मल वे से, प्रोफेशनल वे से अपने बच्चे को हैंडल नहीं कर रहे हो, तो बच्चे का ग्रोथ कैसा एक नॉर्मल वे में होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं एजियल। जो दो बातें यहाँ पे मेजरली लेकर के आई हैं वो ये है कि जरूरी नहीं कि जो जो सारी चीजें हमारे साथ सही थी, प्रॉब्ली जो हमारे पेरेंट्स ने की थी, वो आज के टाइम पे भी बच्चों के साथ सही है। बदलते टाइम के साथ काफी सारी चीजें बदल रही हैं और हम ये नहीं समझ पाते कि उनमें से क्या चीजें हमारे बच्चे के लिए सही हैं या नहीं। और जैसे एजेल कह रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों को हम वो, पहले एक टाइम हुआ करता था कि बच्चे को और माँ को दोनों को ही एक फिक्स टाइम तक के लिए बाहर का कुछ भी खाना या घर में भी खाने में बहुत ही सिलेक्टिव चीजें दी जाती थी, क्योंकि उनका खुद का सिस्टम पे उस टाइम पे बिल्कुल इट्स वेरी डेलिकेट एट दैट पॉइंट इन टाइम, और उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता था। बच्चे को बहुत टाइम तक घर से बाहर नहीं निकाला जाता था ताकि उसको किसी तरीके को कोई इन्फेक्शंस नहीं हो जाए। बट आज के टाइम पे जब हम ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इसी का रेपरकशन है कि आज हमें बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में अलग अलग तरीके की बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो एजिल कह रही है वो ये है कि जब आपको पता चलता है या आप डिसाइड करते हैं कि आप पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो रादर देन जस्ट गोइंग विद इंट्यूटिव वे ऑफ पेरेंटिंग, हमें एक्सपर्ट गाइडेंस लेनी चाहिए, ये समझने के लिए कि बदलते दौर में, बदलते टाइम पे क्या चीज़ें हमारे बच्चे के लिए बेस्ट हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो हमें कंटिन्यू करनी चाहिए कमिंग फ्रॉम जनरेशंस, और वो क्या चीज़ें हैं जिसे हमें टाइम के साथ चेंज करने की ज़रूरत है। तो देयर इज़ अ कांस्टेंट नीड टू अपग्रेड योर पेरेंटिंग एज वेल। सो इज़िल, अकॉर्डिंग टू यू, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम एज पेरेंट्स कर सकते हैं ताकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो? जरूर। तो सबसे पहले ये समझे, अगर आप सोच रहे हो एक पेरेंट बनने के लिए, या फिर आपका ऑलरेडी एक बच्चा है, स्पेशली अगर आपका बच्चा बिलो 8 ईयर्स का के है, तो आपको पेरेंटिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बहुत सीखना होगा, काफी सीखना होगा। उनके फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत जरूरी है। तो जब हम्म। तक आप सीखोगे नहीं उसके बारे में तो आप नहीं कर पाओगे। और एट टिल 8 ईयर्स आप ही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो इन ऑल ऑफ दिस एरियाज। बच्चे 3-4 घंटे के लिए प्री स्कूल जाएंगे, 5-6 घंटे के लिए ग्रेड 1 ग्रेड 2 में जाएंगे, तो फिर भी बच्चे का एक पर्सनलाइजेशन लेवल घर पे ज्यादा मिल जाता है। सारी चीज आपको एज ए पेरेंट समझना है और बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। एंड यू नॉट इवन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। अगर आप दिन के भी अगर 5-10 मिनट ऐसे स्पेंड करोगे अपने बच्चों के साथ कि रियल मीनिंगफुल हो, क्वालिटेटिव हो, जहाँ पे आप और आपके बच्चे के अलावा और कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है लाइफ में, तो दैट ऑल्सो विल बी लाइक अ ह्यूज थिंग। मतलब बच्चे के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होगा उनके डेवलपमेंट पे। तो वो है, आपको सीखना है। जब तक आप नहीं सीखोगे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। एंड सेकंड चीज है, आप जब सीख रहे हो प्रोफेशनल से सीखो, जो उसके बारे में उन्होंने पढ़ाई की है, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर किया है, एक्सपीरियंस उनके वही फील्ड में है। और ऐसा नहीं कि एक या दो बच्चों के साथ किया, मगर बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ उनका एक रिलेशनशिप है प्रोफेशनल लेवल पे। और उनके वीडियोस आपको 100 में से सिर्फ 2-3 ही मिलेंगे ऑनलाइन। आप कोई भी एक इकोसिस्टम देख लो, बी इट बी इट एनी प्रोफेशनल इकोसिस्टम, राइट। काउंसलिंग का एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम होता है जहाँ पे पूरे काउंसलर्स साथ में है। हम्म। डॉक्टर्स का एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम होता है, सभी हम्म। स्टूडेंट्स का एक इकोसिस्टम होता है, टीचर्स का एक इकोसिस्टम होता है।
मगर पेरेंट्स का इकोसिस्टम नहीं है. पेरेंट्स आर ऑल बाय देमसेल्व्स. जबकि अगर हम बोल रहे हैं कि बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे प्रेजेंट, हमारे फ्यूचर के लिए एज अ सोसाइटी, तो बच्चे का जो सबसे ज्यादा परवरिश कर रहे हैं जो पेरेंट्स है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं. एग्जैक्टली. एंड जब वो जीपीएस और पेरेंट्स का वही पॉइंट था मेरा, जब मैं सोच रही थी कि हमने तो टीचिंग के लिए हमारे पास टीचर ट्रेनिंग सेशंस होते हैं बहुत सारे, मगर पेरेंट्स के लिए क्या है. पेरेंट वी एब्सोल्युटली. टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो तो मेच्योर्ड है, एडल्ट्स है, उनको पता रहना चाहिए क्या सही है क्या गलत है. कैसे पता चलेगा जब हमने अगर एक्सपीरियंस किया है बहुत अच्छे अच्छे चीज, तब जाके हम अपने बच्चे के साथ अच्छे अच्छे चीज करेंगे ना. जब मैंने अपने पेरेंट्स का मार सहा है, तो अल्टीमेटली कुछ पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी है मैं अपने बच्चे को मारने वाले हूँ, चिल्लाने वाले हूँ, क्योंकि मेरा इमोशनल रेगुलेशन हुआ ही नहीं है. अगर या फिर ऐसा कुछ एथिकल एस्पेक्ट होगा कि चलो अगर मैंने किसी का पेंसिल ले लिया है, अगर मैंने उनको दिया नहीं और मेरे मम्मी डैडी ने बोला कि नहीं चलो अभी निकल जाते हैं, लेट हो रहा है, छोड़ो अभी, उनको कैसा पता चलेगा. और वही चीज मैं मेरे बच्चों को भी एनकरेज कर रही हूँ कि छोड़ो. तो एथिकल वैल्यू सिस्टम कैसा हो रहा है डेवलप. बनेगा बिल्कुल. तो काफी चीजें हैं इन ऑल कंप्लीट एस्पेक्ट कि पेरेंट्स को जो नॉलेज रहना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली है नहीं. और जो है बहुत ऐसे ना आइलैंड जैसा है, अलग अलग जगह पर है, ऐसे कंप्लीट नहीं है. तो एक हम्म. बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट तब होगा जब पेरेंट के पास एक कंप्लीट पिक्चर रहे ना. तो पेरेंट्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट लार्जली एज अ सोसाइटी हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है दैट वी सपोर्ट द पेरेंट्स. यस. Because if a And we have parent is more not courses like, GPS for parents for, yeah, maybe, something like this should be offered to all the parents so that everybody learns. लर्निंग मतलब बदलते टाइम के साथ लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे एज़ेल कह रही हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि हम जब अपने बच्चों के लिए सब कुछ डिसाइड करना चाहते हैं आज की डेट में, वी वांट कि हमारा बच्चा इसी स्कूल में जाए, वो इस एक्टिविटी में एंगेज करे, वो ये कपड़े पहने, वो ये पेन यूज़ करे, वी गेट सो इंट्रिकेट अबाउट एवरीथिंग, एवरीथिंग। क्या लगता है आपको इज़िल, इतना ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में या तो 1 बच्चा है या 2 बच्चा है जिसके लिए हम सब कुछ चाहते हैं, और जो भी हम नहीं कर पाए, हम चाहते हैं वो सब कुछ हमारा बच्चा करे। हम उसके लिए सब कुछ डिसाइड कर देना चाहते हैं। हाउ हेल्दी और अनहेल्दी इज़ इट फॉर द चाइल्ड? see again, I will obviously the answer you also know, everyone knows it's unhealthy, right? It's not uh, parenting is not where you decide everything for your child. Your child is not a puppet कि आप ऐसे करोगे तो बच्चा ऐसा करेगा, आप ऐसे करोगे तो बच्चा ऐसा करेगा. ऐसा नहीं है. आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे बच्चा इंडिपेंडेंटली एक काइंड ऑफ डिसीजन लेना चालू करे एंड एक्शन में आ जाए, सोचना चालू करे. If you are expecting your child at the age of 18 and 20 to take independent decisions, to become self sufficient, to take decisions which are right and wrong in their life, then you have to right from younger days provide that environment कि वो बच्चा सीख पाए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या बेसिस पे एक डिसीजन होता है, क्या. तो ऐसा जब होता है, लाइक फॉर एग्जांपल, डू यू वांट टू गो फॉर आउट फॉर अ मूवी, येस और नो. लाइफ इतना इजी नहीं है येस और नो के हिसाब से. Do you have that time to go for the movie? Is that movie really meaningful? Is the movie theater really safe for you? What time are you going in? Who are the people that you are going along with? What is the cost that you will be? What are you going to be learning from that movie? Or what are you going to do with that movie? There are multiple things basis one simple decision we take when it comes to a movie. Now imagine the decisions with our careers, with our partners, with
taking care of your own parents. That means taking care of you as a parent. Because the child is 20, 30 years old, right? That means you'll be around 40, 50, 60 years old. You'll be in your kind of a other phase of life, right? Where the child has to take care of you. So is a child capable of taking care of you also at that point? Because if everything you are going to decide, the child doesn't know how to take care of you, how to take care of you when you're in the hospital, how to take money related decisions, life related decisions. So it has so many implications that we forget just because we want the right thing for the child. And the best part is, do you really know what is right? That is really If profound. yes, Do you really you know will what is right? Something might be right for you, but that might not be right for the kid. तो जो एजिल एक्चुअली कहना चाह रही हैं वो ये है कि रादर देन अपने बच्चे के लिए हर चीज़ आप डिसाइड करें, आप उसको एम्पावर करें अपने डिसीजंस लेने के लिए, छोटे-छोटे डिसीजंस लेने के लिए। जैसे अगर आपको बच्चा चाहता है कि मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तो रादर देन टेलिंग कि आप ये काम कीजिए या आप ये एक्टिविटी कीजिए, आप उसे कुछ ऑप्शंस दीजिए। जैसे आप पेंटिंग कर सकते हैं या आप डांस कर सकते हैं या आपको जो भी फन एक्टिविटी या गेम्स खेलना पसंद है, आप वो खेल सकते हैं। यू डिसाइड व्हाट यू वांट। लेट द चाइल्ड टेक द डिसीजन। अगर आप आज उनको ये छोटे-छोटे डिसीजंस लेने देंगे, उनके डिसीजंस को अप्रिशिएट करेंगे और अगर बच्चा कुछ गलत डिसाइड कर भी रहा है, तो आप उसको इसकी इम्प्लीकेशन समझा पाएँगे। तभी वो बच्चा आगे चल कर के एक इंडिपेंडेंट लीडर बनेगा। जब तक आप अपने बच्चे के लिए सारे डिसीजंस लेते रहेंगे, ज़रूरत आने पे वो अपने लिए डिसीजंस नहीं ले पाएगा। तो 3 चीज़ें हैं जो एज़िल इस टाइम यहाँ पे कह रही हैं। पहला कि आप आपके बच्चे के 0 टू 8 इयर्स आर वेरी क्रूशियल इन रिगार्डिंग द ब्रेन डेवलपमेंट। एंड यू मस्ट लर्न। आपको बहुत ज़रूरत है ये सारी चीज़ें सीखने की कि बच्चा किस स्टेज पे क्या सीखता है और उसके लिए उस स्टेज पे क्या चीज़ें सही हैं। तो पहले आप जिस तरीके से आप रिसर्च बाकी किसी चीज़ के लिए करते हैं, उतनी ही रिसर्च आप अपने बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में करें, ताकि आप उसकी हर ज़रूरत को कैटर कर सकें। दूसरा, आप जितना भी टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर सकते हैं, एंश्योर कि वो क्वालिटी टाइम हो। क्वालिटी टाइम इन द सेंस कि बाकी डिस्ट्रैक्शन से फ्री होकर के आप और सिर्फ़ आपका बच्चा कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप दोनों बहुत एन्जॉय कर सकते हैं। वो एक ऐसा टाइम हो जहाँ बच्चा अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता हो, आप उसके साथ खेल सकते हैं, आप कोई एक ऐसी एक्टिविटी बना सकते हैं जो आप दोनों एन्जॉय करते हो एंड दैट इज़ समथिंग दैट द चाइल्ड चेरिशेस एंड लुक्स अप टू। वो समय का वेट करे कि ये हमारा वो क्वालिटी टाइम है अपने पेरेंट्स के साथ जो हम स्पेंड करना चाहते हैं। और तीसरा कि जब आप पेरेंटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, तो लुक फॉर द बेस्ट एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स इन द सेंस उनकी क्वालिफ़िकेशंस हों उस फ़ील्ड में आपको गाइड कर पाने के लिए और उसके साथ-साथ उनका एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा हो, ताकि यू गेट द बेस्ट एक्सपर्टीज़ और उस चीज़ का फ़ायदा आपको और आपके बच्चे दोनों को मिले। तो ये आज की चीज़ आज की हमारी इस टॉक का मेन टेक अवे ये है कि रादर देन हम होता क्या है कि एज़ पेरेंट्स हम बच्चे के अंदर गलती ज़्यादा ढूँढते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है या बच्चा बैक आंसर क्यों कर रहा है या बच्चा इतना ज़्यादा व्हाई इज़ द चाइल्ड सो ग्लूड टू द स्क्रीन। बट वी फॉरगेट टू एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स कि हम कितना टाइम बच्चे के साथ स्पेंड कर पा रहे हैं, हम कितना डिस्ट्रैक्शन फ्री खुद रहते हैं एज़ पेरेंट्स की जिनको देख कर के बच्चा सीख रहा है। तो यहाँ पे एज़ियल का मेन पॉइंट ये है कि रादर देन पॉइंटिंग द मिस्टेक्स इन द किड, लेट्स हैव अ डीपर लुक एट आवरसेल्व्स, वेयर इज़ इट दैट वी आर गोइंग रॉन्ग? And last question to you would be, Asil, you're so passionate about, the kind of work that you're doing. You want to create an impact and you want that every child should be heard. So what would be your key message to parents today so that, they both are very happy and we create a happy society? Sure. So the only thing that I would like to say is a happy parents is equal to a happy child. So if you want your child to be happy, you have to be happy in the first place. Happy from your own childhood life, free from your own childhood life, if there were any traumas of yours, if there were areas जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे बचपन में
बहुत सारी चीज गलत हुए मेरे बचपन में, काफी चीजों में मुझे बहुत, उसके कारण मेरे लाइफ में काफी अशांति है। अगर हम रिफ्लेक्ट करें, काफी चीज हमारे बचपन में जो अच्छे हुए उसका एक बेनिफिट होता है, एक फ्रूट निकलता है, और जो अच्छा नहीं होता है हुआ है मेरी लाइफ में, उसके भी एक आउटकम निकलता है। और वो काफी चीजें अपने बच्चे में रिफ्लेक्ट होता है, बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। राइट। तो अगर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उस चीज से कन्फ्रंट करो, काउंसलिंग लो, और अपने आप को हील करो। राइट। सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको मारा है, तो वो गुस्सा, वो एंगर, अभी हम बोल भी देंगे हाँ जो किया मेरे पेरेंट्स ने वो सही है, मगर जब आप रिफ्लेक्ट करोगे, जब एक आप काउंसलर के पास रहोगे या फिर किसी के पास जब आप बात करना चालू करोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि वो मारना, वो चिल्लाना आपके लाइफ को कितना हर्ट किया है, आपको कितना उन वो ऐसे एक्सपीरियंसेस में जो आप खिलने वाले थे अच्छे से, कितने आपके वो एक्सपीरियंसेस की वजह से मुरझा गए हो। और वो चीज अभी बच्चों पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो दिखेगा। तो वो है सेकेंडली, आप जब सीखोगे पेरेंटिंग के बारे में प्रॉपर वे से, तो आप देखोगे कि आपके पास कितने सारे आंसर्स पहले से है, और आपको अभी पता है कि आप माइंडफुली कैसे अपने बच्चे के साथ बात करना है, उनको कैसे एंगेज करना है, उनके साथ कैसे एक कनेक्शन बिल्ड करना है। और जब वो होगा, तो ऑटोमेटिकली आप एक हैप्पी पेरेंट होंगे। तो उतना एक लॉजिकल वे से जब आप करते हो, तो बच्चा भी देख रहा है आपको, तो ऑटोमेटिकली वो समझ रहा है कि मेरा पेरेंट खुश है। तो बच्चे को भी हमेशा चाहिए कि आपके उनके पेरेंट खुश रहे, वो कितने भी मस्ती कर रहे हैं, उनका हमेशा वो एक रहता है कि क्या मेरा मेरे मेरे पेरेंट खुश है, क्या मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं मेरे पेरेंट को खुश रखूं, राइट? तो when you are happy, you'll make your child happy. And it's also when the child is happy, now the child is happy, when you see the happiness in your child, you will become in turn once again happy. So that's kind of a vicious cycle. So happy parents is equal to happy child. वंडरफुल। सो और कुछ याद रहे ना रहे आपको इस कॉन्वर्सेशन से, सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि हैप्पी पेरेंट इज इक्वल टू हैप्पी चाइल्ड। ये याद कर लेंगे, आपको पूरी एनालॉजी याद आ जाएगी जो हेजियल ने अभी समझाई है कि जब आप खुद खुश होंगे तब आप बच्चे को वो खुशी दे सकते हैं, और बच्चे की भी हमेशा ये खुशी रहती है कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स भी खुश रह सकें। तो इस तरीके से दैट साइकिल कंटिन्यूज। और जो मेजर मैसेज एजियल यहाँ पे देना चाहती हैं कि आपके चाइल्डहुड के जो भी ट्रॉमास रहे हैं, अपने आप को हील कीजिए और बच्चे के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। And when you are happy, when you are healed, you create the space for the child to be happy. And when you both are happy, we create a happy society. What a wonderful learning and, enriching talk this was. Thank you so much, Ariel, for sharing such valuable insights and experiences with us. और हम चाहेंगे कि एक बार दोबारा आपसे बात हो जहां हम और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बच्चों के बारे में और पेरेंटिंग के बारे में आपसे कुछ सीख सकें। Sure. And thank you so much for having me. It was a beautiful conversation. Thank you so much for being here today. Have a good day. Thank you.